Political parties across Jammu and Kashmir on Friday reacted to the announcement of dates for the assembly elections in the Union Territory by the Election Commission. As per the Chief Election Commissioner, voting will take place for the 90 seats in Jammu and Kashmir in 3 phases on September 18th, September 25th and October 1st, and votes will be counted on October 4th. Date of poll will be 18th of September and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. The announcement by the Election Commission comes months after the Supreme Court upheld the centre's decision to scrap Jammu and Kashmir's special status and directed that assembly elections be held by September 30th. Reacting to the developments, the People's Democratic Party or PDP said it expected the J&K administration to follow the Election Commission's order regarding fair and free elections in the Union Territory. जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी को लेवल बैटलफील्ड दिया जाएगा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को उसका हक दिया जाएगा और पार्शलिटी नहीं की जाएगी, तो हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन की इन बातों को यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मानेगी और इलेक्शन कमीशन इसको पर्सनली देखेंगे, क्योंकि जो लोकसभा का इलेक्शन जब हुआ था, जो उसमें जो कुछ हुआ था वो आप सब लोगों के सामने, जिस तरीके से उन्होंने हमें किया गया, जिस तरीके से बातें की गई लेवल बैटलफील्ड की, लेकिन वो नहीं दी गई। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है तो हम भी इसके लिए उनका वेलकम करते हैं। Jammu and Kashmir Pradesh Congress Committee welcomed the announcement of the assembly elections in the Union Territory and said that the people of Jammu and Kashmir will see strengthening of democracy when they elect their own representatives. जहां तक यहां इलेक्शन होने का ताल्लुक है, हम एक बार फिर इसका वेलकम करते हैं और कांग्रेस पार्टी तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ जम्मू कश्मीर में, जमहूरियत को पनपने के लिए, जमहूरियत की जड़ों को मजबूत बनाने में, और वो लोग जो इस वक्त नालान हैं, मुश्किलात से दो चार हैं, वो कम से कम एक लाइट देखेंगे डेमोक्रेसी की, अपना नुमाइंदा चुनेंगे, अपना नुमाइंदा असेंबली में होगा और जल्द अज जल्द स्टेटहुड भी हमको मिलना चाहिए। BJP leaders in Kashmir also said that the party cadre in Jammu and Kashmir is all prepared for the assembly elections and will form the government in the Union Territory. देश के प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर से ही कहा था कि ड्यू टाइम में इलेक्शन के लिए, तो उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में मोड़ में आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का जो 50 पार का नारा है, हम उस पर काम करें और हमें उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सिंगल हैंडेड जम्मू कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। National Conference Vice President Omar Abdullah said the Election Commission should look into the transfer of officials in Jammu and Kashmir, which happened in the last 24 hours. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी जो मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने फ्री और फेयर पोल्स पे बहुत जोर दिया। उन्होंने सिक्योरिटी को लेके किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए उसका जिक्र किया। तो मैं फौरी तौर इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहता हूं, हम उन्हें एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहाँ ट्रांसफ़रें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायज़ा लेना चाहिए। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफ़र किए जाना, हमें तो शक है कि ये हुकूमत, दिल्ली की जो हुकूमत की पार्टी है बीजेपी, उन्हीं का लगाया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे। बीजेपी को मदद और बीजेपी को फ़ायदा और उनके जो सहयोगी बी टीम, सी टीम, डी टीम है यहाँ पे, उनको मदद पहुँचाने के लिए ये ट्रांसफ़रें कराई गई हैं। Jammu and Kashmir police saw a massive shake-up on Friday as several senior officers were transferred, with its intelligence wing getting a new chief. In 3 separate orders, the government transferred 33 senior police officers with immediate effect.
Democratic Progressive Azad Party President and former Jammu and Kashmir Chief Minister Ghulam Nabi Azad, while addressing a press conference in New Delhi, said this is the first time since independence that elections are being held after 10 years. 370 को ख़त्म किए हुए 5 साल हुए, लेकिन इलेक्शन 10 साल के बाद, तो मेरे ख्याल में आज़ादी के बाद ये पहली दफ़ा है कि 10 साल के बाद इलेक्शन हुए। सवाल ये नहीं है कि कौन पार्टी हुकूमत बनाता है, कौन सीटें कितनी लड़ता है, ये उतना ज़रूरी नहीं। इस वक्त ज़रूरी जो 10 साल के बाद है, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को अपनी मर्ज़ी से अपना प्रतिनिधि, अपना नुमाइंदा चुनने का अवसर मिला है। Locals in Kashmir also welcomed the announcement by the Election Commission and expressed happiness at being able to vote for their representatives. जो 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो नोटिफिकेशन आई है कि असेंबली इलेक्शन जो है वादी कश्मीर में हो रहा है, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि इतने सालों के बाद जो है वादी कश्मीर में जो है इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो लोकल मसलों मसाइल थे वो अब हल होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट जो यहाँ है उसमें भी बहुत सारा क्या इसको बोलते हैं जॉब्स मिलेंगी, बाकी सब जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ वादी कश्मीर वो हल होंगी। हम इस इलेक्शन कमीशन के बहुत ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने जो है असेंबली इलेक्शन का यहाँ पे करवाया। आप समझो हमारे लिए आज ईद का दिन है, क्योंकि कई सालों के बाद आज यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि जमहूरियत में जो इलेक्शंस है वो मेन पार्ट होता है, क्योंकि हम उस पार्ट से महरूम थे। आज बिल आखिरकार जो ईसीआई है आज उन्होंने ऐलान किया है जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस को लेके, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। The last assembly elections in Jammu and Kashmir were held in November-December 2014, and these will be the first assembly elections in the erstwhile state since the abrogation of Article 370 in 2019.